हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड को पूरा कवर करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको ट्राई किया है इनकॉर्पोरेट करने का एक ही वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो देखकर मजा आएगा और आपको जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना, उनका भी रिविजन एक बार हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर वन, आराधना तगोत्रा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज। JC Academy is offering a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management with multiple validity options. Also, paper 2 foundation course alone is available. You can call on the given number or you can visit the official website. Also, for complete foundation course for paper 1, scholarship offer is going on where you can avail flat 50% off on UGC NET paper 1 course if you are using the code GIFT50. So do avail this offer before it ends. Now starting with the first topic, which is methods of acquiring knowledge. So basically there are 5 methods by which we acquire knowledge. The first is intuition. Intuition का मतलब क्या होता है? The gut feelings, ठीक है, emotions and instincts to guide understanding. It is the first method of knowing. ठीक है, हम जो बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस, दैट इज इंट्यूशन, जो हमें गट फील आता है. देन सेकेंड इज अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब दिस इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग आइडियाज एज ट्रू बिकॉज एन अथॉरिटी फिगर और एक्सपर्ट स्टेट्स देम. हम इंडियन लॉजिक में क्या पढ़ते हैं? एक शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण भी यही बात करता है कि अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जो उस डोमेन की बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है और अगर वो कोई चीज बोल रहा है तो हम उसको एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर करते हैं. देन थर्ड इज रैशनलिज्म. दिस मेथड यूजेस लॉजिक एंड रीजनिंग टू गेन न्यू नॉलेज. एम्पेरिसिज्म. Empiricism, it is through observation and experience, that is learning by doing. Empiricism means learning by doing. And scientific method is a systematic process of collecting and evaluating the evidence to test the ideas and answer the questions. So these are the 5 methods by which we acquire knowledge. Now, what is research? Re means again or afresh, repeatedly, and search means to find out something by looking or otherwise seeking carefully and thoroughly. So research means searching again and again to find something. So research is ideally the careful, unbiased investigation of problem based in so far as possible upon demonstrable facts and involving distinction, interpretation and generalization. तो हम क्या करते हैं? हमारे जो भी हमारे पास डेटा होता है हम उसको कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. So it is about asking and beginning to answer the questions, seeking knowledge and understanding of the world and its process and testing the assumptions and beliefs. हमने कुछ assumptions किए होते हैं, क्या वो assumptions, क्या वो belief हमारे सही है या नहीं है, वो हमें कौन बताता है? वो हमें रिसर्च बताता है, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम टेस्टिंग करते हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की अगर बात करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इट शुड बी अनबायस्ड. इट शुड बी अनबायस्ड, बायसनेस नहीं होनी चाहिए. Then it should be logical in nature. मैंने अभी आपको बताया था rational way of thinking. Then empirical, that is learning by doing. Then reproducible and verifiable. Reproducible मतलब कि आप सैंपल पर टेस्ट करके उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, दैट इज रिप्रोड्यूसिबल. या फिर आप सैंपल पे ही बार बार टेस्ट करके चेक कर रहे हैं कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है क्या वो ठीक है या नहीं है, दैट इज रिप्रोड्यूसिबल एंड वेरीफाइबल. Then ethical, it should follow the ethics, that is the right way of collecting the data, of interpreting the data, of analyzing the data. Then analytical, it should be analytical in nature. Then critical in nature, ठीक है, seriousness होनी चाहिए, ऐसा नहीं मजाक मजाक में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Then it should be innovative in nature, यानी there should be a new way to think about the to think about the solution.
रिसर्च हम इसीलिए करते हैं कि हमें कोई नया तरीका मिले उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का. देन इट शुड बी पर्पसफुल इन नेचर, यानी इट शुड हैव सोशल रेलिवेंस. देन सिस्टमैटिक अप्रोच, हमारे पास रिसर्च का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. सो इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच. आइटरेटिव इन नेचर, यानी इट शुड बी रिपीटेबल इन नेचर. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे रिसर्च के. Now, what is research objectives? So, research objectives are precise statements that describe what the researcher aims to accomplish. अब एज अ रिसर्चर आप क्या accomplish करना चाहते हैं अपनी स्टडी से, वो कौन डिफाइन करता है? हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं. They outline the purpose of the study and the specific questions it seek to answer. रिसर्च करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बट हम जब रिसर्च करते हैं तो हम अपना जो टॉपिक है, हमारा जो स्कोप ऑफ स्टडी, हम उसको नैरो डाउन करते हैं. वो क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर ढूंढ पाए. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर टू द रिसर्च प्रोसेस. अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले फोकस. मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने रिसर्च स्कोप को नैरो डाउन कर देते हैं टू अ स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स. जो गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, हम अपना जो फोकस है, हम अपना जो स्कोप है, हम उसको नैरो डाउन कर देते हैं. Then is guidance. So it provides a roadmap for selecting the research method and designing the study. अभी मैंने आपको बताया आपके पास रिसर्च डिजाइन होता है जिसको आप फॉलो करते हैं. Then clarity, that ensures researcher and audience understand the purpose. क्या आपका पर्पस है स्टडी का? एज अ रिसर्चर आपको पता होना चाहिए और आपकी ऑडियंस को भी, आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स है उनको भी पता होना चाहिए. Then is evaluation, that is serve as benchmark for assessing whether the study has achieved its goals or not. हमने जो इनिशियली डिसाइड किया था कि हम अपनी रिसर्च से, हम अपनी स्टडी से ये चीज अचीव करेंगे, क्या हमने वो अचीव किया है या नहीं किया है, वो हमें कैसे पता लगता है? थ्रू इवैल्यूएशन. Now we have types of research objectives. The very first is descriptive objective. Descriptive objective का मतलब आप describe कर रहे हैं. You are describing the characteristics of the population. Characteristics of the population. That is descriptive objective. एक्सप्लोरेटरी का मतलब आप न्यू एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. देन थर्ड इज एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू एरियाज को, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. फोर्थ इज प्रिडिक्टिव ऑब्जेक्टिव्स. प्रिडिक्शन, आप फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं, बिहेवियर या आउटकम के बारे में बता रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा अवेलेबल. देन लास्ट इज इवैल्यूएटिव ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे आप असेस कर रहे हैं द इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन. आपने कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम या कुछ भी आपने एक प्रोसेस में इम्प्लीमेंट किया है, तो अब आप देखना चाह रहे हैं, आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो आपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है क्या वो डिजायर्ड आउटकम हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है. नाउ few questions, और ये सारे आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. द फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप न्यू थ्योरी. क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. सबसे पहला तो अलर्ट आपको ऑलवेज पे होना चाहिए. और इट डज नॉट ऑलवेज एम टू डेवलप न्यू थ्योरी. अब जैसे आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है या आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, क्या आप उस पर डेवलप करते हैं थ्योरीज को? नहीं करते हैं. देन इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. यस. लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस. यस. हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च. नो. हिस्टोरिकल एक्सपोज फैक्टो में हम नहीं करते हैं. देन इट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस एविडेंस टू डिराइव फाइंडिंग्स. यस. BCE. आंसर नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is not a characteristic of sound theory? ठीक है. A theory must be stated in simple and precise terms. Correct. A theory must not conform to previously established knowledge or validated theories. No, it should conform. It should conform. क्योंकि जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं या आप कोई भी स्टडी करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द प्रीवियस थ्योरीज. ठीक है, जो पुरानी थ्योरीज होती है उन पे ही बेस्ड आपकी जो न्यू स्टडी होती है आप उसको करते हैं. A theory should provide means for its own interpretation and verification. Yes. A theory should guide new discoveries and identify areas that need further investigation. Yes. तो हमें not a correct statement हमें बतानी थी. That is answer number 2.
नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब हमें देखना है हमारे पास कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। हम अपना जो हमारे पास नॉलेज है अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन, तो हम उसको और इन्हांस करने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज प्योरली थ्योरी ओरिएंटेड। ठीक है, जैसे आप लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, आपको एक या दो पता थी, बट आपने और कहीं से भी देखा और कहीं से पढ़ा, तो आपको पता चला नहीं बहुत सारी टाइप की हमारी लर्निंग थ्योरीज होती हैं। सो दिस इज फंडामेंटल रिसर्च। देन सेकंड इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड मतलब क्या हो गया कि आप सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्या कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। सो इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। देन थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हैं करेंट सिचुएशन को, कि व्हाट इज, मतलब स्टडी किस बारे में है, लाइक सर्वे ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एनालिटिकल रिसर्च, जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग डेटा को यूज कर रहे हैं फॉर एनालिसिस, जहाँ पे क्रिटिकली आप इवेल्युएट करते हैं। देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, और जहाँ वेरिएबल्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस। देन इज एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर कर रहे हैं आप न्यू प्रॉब्लम्स को, जो जिन एरियाज पे कम काम हुआ है या बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आप उन पे जब काम करते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। एक्सप्लेनेटरी, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। क्वांटिटेटिव, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं और स्टैटिस्टिकली आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं टू डिराइव द रिजल्ट्स। देन वी हैव क्वालिटेटिव, जहाँ पे नॉन न्यूमेरिकल डेटा टेक्स्ट, इमेजेस, वर्ड्स की फॉर्म में होता है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स के बारे में आप बात करते हैं। देन वी हैव मिक्स्ड रिसर्च विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज स्टडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप एक ही सैंपल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, कि आप एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या करें, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, जब व्हेन ही और शी वाज ऑफ 1 ईयर, आपने तब से लेके आपने स्टडी करना है कि उसका माइंड कैसे डेवलप हो रहा है, लाइक लेट्स से 30 ईयर्स तक। तो वो सैंपल आपका सेम है, यू आर हैविंग दैट सेम सैंपल, बट जो टाइम पीरियड है वो बदल रहा है। क्रॉस सेक्शनल में आप क्या करेंगे, आप 1 साल का बच्चा भी लेंगे, आप लेट्स से 15 साल का भी ले रहे हैं, 20 का भी ले रहे हैं, 25 का भी ले रहे हैं, 30 का भी ले रहे हैं, तो अपने एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक एज ग्रुप से एक एक इंडिविजुअल ले लिया, दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, जहाँ पे आप पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। केस स्टडी, दैट इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ वन पर्टिकुलर यूनिट। अब वो जो यूनिट है, वन यूनिट, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एन इवेंट, इट कैन बी अ कंपनी, कुछ भी हो सकता है। एक्शन रिसर्च, इट सॉल्व्स इमीडिएट लोकल लेवल प्रॉब्लम। ठीक है, इमीडिएट लोकल लेवल प्रॉब्लम आपका एक्शन रिसर्च सॉल्व करता है। अब देखिए, अगर हम कीवर्ड्स की बात करती हूँ, सो बेसिक, प्योर एंड फंडामेंटल हमारी थ्योरी ड्रिवन होती है, साइंटिफिक इन नेचर होती है। जनरलाइजेशंस की बात होती है। देन अप्लाइड इज प्रैक्टिकल सॉल्विंग। एक्शन रिसर्च, इमीडिएट सोल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम, इट इज फॉर अ टेम्पररी चेंज। एक्सपेरिमेंटल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, आर्टिफिशियल सेटिंग्स होती है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, एंड देयर इज ऑलवेज इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इट इज अ कीवर्ड, जहां पे आपको क्रिटिसिज्म दिखे, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सपोस्ट फैक्टो में क्या बात होती है कि आफ्टर द इवेंट हैज हैपेंड, ठीक है, इवेंट हो चुका है, अब आप क्या करेंगे कि आप जो आपके वेरिएबल्स हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। एथनोग्राफी, आप कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं नेचुरल सेटिंग्स में। देन ग्राउंडेड थ्योरी, इट इज द जनरेशन ऑफ थ्योरी। एम्पेरिकल इज एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सप्लोरेटरी, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन को। देन फील्ड रिसर्च, आप नेचुरल सेटिंग्स में जाके आप ऑन द फील्ड जाके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल, मैंने आपको बताया, सेम टाइम डिफरेंट पॉपुलेशन। लॉन्गिट्यूडनल, सेम पॉपुलेशन डिफरेंट टाइम। मिक्स्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। डिस्क्रिप्टिव, आप डिस्क्राइब करते हैं। एनालिटिकल, आप वाई का आंसर देते हैं, आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द डेटा अवेलेबल। कंसेप्चुअल, इन डेप्थ इवेल्युएशन की बात होती है। कोरिलेशन, इट इज कॉज और इफेक्ट की बात करते हैं।
correlation, that is the relation between independent and dependent variable. regression is how they are related. ठीक है, correlation बताता है कि जो हमारा इफेक्ट है और जो मतलब जो कॉज है उसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहा है, दैट्स इट. वो बाकी अदर फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है. लेकिन हमारा जो रिग्रेशन है वो बताता है कैसे रिलेटेड है, हाउ इट इज रिलेटेड. देन quasi experimental, that participants are not assigned randomly cohort whose members have some specific characteristics, and prospective is the recollection of the past. अब देखिए, qualitative content analysis of documents related to different time periods pertain to which of the following. जब आ जाए different time period, different time period is longitudinal and same time period is cross sectional. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में मैंने बताया आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और हमारी कंट्रोल्ड सेटिंग्स भी होती है. कंपैरेटिव क्या हो गया, आप कंपेयर कर रहे हैं दो स्टडीज को, दैट इज कंपैरेटिव. नाउ केस स्टडीज. केस स्टडी मैंने आपको बताया ये प्राइमरली क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जहां पे हम एक इन डेप्थ यूनिट की बात उसको हम स्टडी कर रहे हैं, और वो यूनिट क्या हो सकता है, कोई पर्सन, ग्रुप, इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन. They often focus on this single complex subject to provide in-depth context-bound insight through multiple cases for comparison. Then observation में क्या है कि जब भी एज अ ह्यूमन हमें पता होता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा हो जाता है. ठीक है, हम वी यूजुअली टेंड टू चेंज आवर बिहेवियर एंड मोस्टली टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड. So observation involves watching and recording the spontaneous behavior of the participants in their natural environment or a controlled setting. So human behavior they often change when they know that they are being watched. और इसको हम क्या बोलते हैं, हॉथरॉन इफेक्ट. कि जब हमें पता है कि लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, दैट इज हॉथरॉन इफेक्ट. Correlation research, it investigates the statistical relationship between two or more variables without the researcher controlling or manipulating them. आप ना कंट्रोल कर रहे हैं ना आप मैनिपुलेट कर रहे हैं. It aims to see if variables they change together, यानी more study time correlates with higher grades. क्या ज्यादा पढ़ने से हर बार ज्यादा ग्रेड्स आते हैं, जरूरी नहीं है. देयर आर अदर फैक्टर्स. वहाँ का जो बच्चा है वो एनवायरनमेंट उसको अच्छा मिल रहा है, ठीक है, शांत एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, बट हमने अदर फैक्टर्स कंसिडर नहीं किया. हमने सिर्फ क्या देखा कि ज्यादा पढ़ाई करना इज को रिलेटेड टू ज्यादा मार्क्स. सो कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन. अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपको मैच द फॉलोइंग. आपको केस स्टडी, कोरिलेशन, ऑब्जर्वेशन और सर्वे रिसर्च दिया है, अब आपको मैच करना है. अब देखिए, केस स्टडी, डिफिकल्टी इन जनरलाइजिंग टू पॉपुलेशन एट लार्ज. क्यों, क्योंकि हम एक ही यूनिट को स्टडी करते हैं. सो एक सेकेंड एक ही में है. कोरिलेशन अभी बताया, इट शोज एसोसिएशन बट नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आता है हमारा कोरिलेशन. ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया दैट पर्संस भी चेंज देयर बिहेवियर जब उनको पता है कि जो डेटा है वो कलेक्ट हो रहा है और या फिर उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड देन वी हैव सर्वे रिसर्च, दैट इज रिस्पोंडेंट्स में डिस्टॉर्ट देयर रिस्पॉन्स टू मेक देम सोशली एक्सेप्टेबल. Again, the researcher continues to collect and analyze the data until satisfactory findings are derived. To study the change in emotional maturity of students with passage of time. Emotional maturity, this is developmental, क्योंकि आप डेवलप कर रहे हैं, दिस इज डेवलपमेंटल. ठीक है, इमोशनल मेच्योरिटी स्टूडेंट्स की टाइम के साथ डेवलप होती है. सो बी का 3 हमारे दो ऑप्शंस में है. The study of effect of one variable under controlled conditions, experimental. C का सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया. ए का 4th, दिस इज ग्राउंडेड थ्योरी, जहाँ पे हम ग्राउंडेड मतलब हम थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं. और ये आ गया सर्वे रिसर्च, दैट इज स्टडी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ वर्किंग वुमेन. तो ये हमारे मैच द फॉलोइंग आ गया. बेसिक रिसर्च, अप्लाइड एक्शन एंड इवैल्यूएशन. बेसिक रिसर्च पता है एक्सपैंडिंग द नॉलेज, ए का 4th.
ए का फोर्थ जैसे करेंगे तो हमारे बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, एलिमिनेट हो गए, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइड देख लेते हैं। अप्लाइड आ गया हमारा इंप्रूविंग प्रैक्टिसेस इन स्पेसिफिक सेटिंग, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड आ गया सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्शन रिसर्च इंप्रूविंग द प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये लोकल लेवल पे होती है, इमीडिएटली होती है, सो हम इंप्रूव करते हैं। इवैल्यूएशन हो गया कि हम अपने प्रोग्राम्स या इंटरवेंशंस को असेस कर रहे हैं कि जो हमने इंप्लीमेंट किए क्या हमें डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। A study meant to discover whether the variables co-vary. It relates to correlational research. The approach in which researchers use the existing data to create the groups for comparison. जब भी हमारा existing data होता है और हम ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कंट्रोल सेटिंग्स होते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट हम एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट हैपेंस आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड। आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड, तो इसलिए हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा होता है हम उसको ग्रुप्स में कंबाइन करते हैं, ग्रुप्स में मतलब कलेक्ट करके हम उनको कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। Then we have experimental research. So experimental research क्या होता है? It is a scientific study which involves testing of hypothesis through experimentation. हम hypothesis testing किस में करते हैं? Experimental research में, जहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसका इफेक्ट देखते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जो एक्चुअली में ट्रीटमेंट रिसीव करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी ड्रग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई ड्रग हमने बनाया है लेट्स से सर दर्द के लिए, तो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्चुअल वाला जो हमने ड्रग बनाया वो दिया, और कंट्रोल ग्रुप को कौन सी दी? हमने मीठी गोली दे दी, स्वीट कैंडी। ठीक है, हमने उनको एक मीठी गोली दे दी, वी हैव गिवन देम स्वीट कैंडी। तो अब देखो, जब एक्चुअली में रिसीव हो रहा है ट्रीटमेंट तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है तो एक हमें बेसलाइन मिल जाता है। तो हमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का यही फर्क है, एक को एक्चुअली में हम ड्रग देते हैं, जो भी हमने टेस्ट करना है, जो भी हमने इंटरवेंशन करना है, हम उनको एक्चुअली में वो चीज करते हैं जो हमने स्टडी की है या जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, और कंट्रोल ग्रुप को हम मीठी गोली दे देते हैं, दैट इज दे डू नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। ये हमारे दो ग्रुप्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, तो हमारे पास एक होता है प्री टेस्ट, एक होता है हमारे पास पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब क्या है? दैट इज बिफोर, प्री पहले, बिफोर दे हैव अंडरगॉन सम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज प्री टेस्ट। पोस्ट टेस्ट मतलब आफ्टर दे हैव रिसीव्ड द ट्रीटमेंट, दैट इज पोस्ट टेस्ट ग्रुप। अब इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, पहला आता है बिफोर एंड आफ्टर विदाउट द कंट्रोल डिजाइन, यानी अ सिंगल टेस्ट ग्रुप इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट बट विदाउट अ कंट्रोल ग्रुप। आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे काम किया, ठीक है, आपने सिर्फ एक ही ग्रुप था आपके पास और आपने उसी को ट्रीटमेंट दिया और उसी को आपने मेजर किया बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन, यानी आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक टेस्ट ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, आपने दो ग्रुप्स लिए हैं, ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, लेकिन किसको? खाली टेस्ट ग्रुप को, यानी खाली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपने जो ट्रीटमेंट है वो अप्लाई किया है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज देन मेजर्ड साइमल्टेनियसली। तो अपने कंट्रोल ग्रुप को तो कुछ भी नहीं किया है, वो एज इट इज है, और टेस्ट किसको लगा है? खाली सॉरी एक्सपेरिमेंट किसको दिया है आपने? खाली टेस्ट ग्रुप को दिया है। देन वी हैव बिफोर एंड आफ्टर। अब क्या है यहाँ पे? टू एरियाज आर मेजर्ड बिफोर ट्रीटमेंट विच इज देन अप्लाइड ओनली टू द टेस्ट ग्रुप, बोथ एरियाज आर मेजर्ड अगेन आफ्टर फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे आपने दोनों को ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ पे खाली ट्रीटमेंट के बाद आपने कंट्रोल ग्रुप के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दोनों ट्रीटमेंट्स दिए हैं। फिर आते हैं फॉर्मल। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में पहला है हमारा कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, यानी इट इज बेस्ड ऑन टू की प्रिंसिपल्स, रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन। रेप्लिकेशन मतलब कि जो आप सैंपल पे टेस्ट कर रहे हैं,
इट शुड बी एप्लीकेबल टू पॉपुलेशन एज वेल, एंड रैंडमाइजेशन कि यहाँ पे दे मस्ट हैव इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड यानी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. Then randomized block design, an improved version of CR design that is incorporating local control alongside replication and randomization. Latin square design, a statistical design that controls for two sources of variability by arranging treatment in a square grid. And factorial design जहाँ पे हम multiple independent variables को एक ही बार में टेस्ट करते हैं. तो आपको जो ये मैंने ब्लैक में कीवर्ड्स दिए आपको इनको याद रखना है. अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, फैक्टर डिजाइन इज यूज्ड फॉर वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो फैक्टर डिजाइन है इट इज यूज फॉर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो हमारा आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा. इट इज यूज फॉर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. नो. It has only one independent variable. No. It is used for two or more dependent. No. Two or more independent variables. Now informal experimental designs हमारे कौन कौन से होते हैं. जो informal हमने ये यहाँ पे किए थे before and after वाले. अगर आप देखो आपको नहीं ज्यादा पता, आप फैक्टोरियल डिजाइन निकाल सकते हो. आपको पता है फैक्टोरियल डिजाइन हमारे फॉर्मल में आते हैं. जब ए निकाल देंगे तो हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ठीक है, उसके बाद है बिफोर एंड आफ्टर. बी तो है ही है. ठीक है, हमारा ये भी निकल गया. बी तो है. सी भी है. रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन ये हमारा फॉर्मल में आता है, ये हमारा इनफॉर्मल में आता है. तो बी सी ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ अब आते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी में. एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है. इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी इट एड्रेसेस व्हाट इज नॉलेज एंड हाउ डू वी एक्वायर इट. अब कोर्स स्कोप क्या है. इट एग्जामिन्स द नेचर, स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज, डिटरमाइनिंग व्हाट क्वालिफाइज एज एक्सेप्टेबल नॉलेज विद इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन. अब हमारी एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोचेस कौन कौन सी होती है. एम्पेरिसिज्म, इंटरप्रेटिविज्म, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. एम्पेरिसिज्म क्या होता है कि दैट नॉलेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड सेंसरी परसेप्शन. So it places heavy emphasis on observation, experimentation and concrete evidence. ये होता है हमारा एम्पेरिसिज्म, जो हमारी बात करता है कि हम एक्सपीरियंस से या फिर जब हम कोई काम करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, उससे हम जो भी नॉलेज अचीव कर रहे हैं वो हम किस में कैटेगराइज करते हैं. एम्पेरिसिज्म में. Then we have interpretivism. Interpretivism की जो नॉलेज है इट इज सब्जेक्टिव एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड. हर एक इंडिविजुअल का अपना तरीका होता है नॉलेज को इंटरप्रेट करने का. सो इट एम्फसाइजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द मीनिंग्स. जो लोग जिस चीज के साथ अपना मीनिंग अटैच करते हैं तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है उस चीज के बारे में वो चेंज हो जाता है. पॉजिटिविज्म, इट इज ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल. ठीक है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च पे ज्यादा फोकस करता है. और की बिलीफ क्या है इसका कि दैट देयर इज वन सिंगल रियलिटी. पॉजिटिविज्म, it assumes knowledge is derived from observable measurable facts. It maintains that scientific method is the superior way. तो ये बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे, साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर. पोस्ट पॉजिटिविज्म, इट इज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू पॉजिटिविज्म. ठीक है, ये क्या बात करता है कि जो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इट इज डिफिकल्ट टू अचीव. यानी जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस है वो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन परसेप्शन से इंटरवीन होती ही हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं. So while it continues to value scientific method, it creates a space for subjectivity and interpretation. तो post positivism क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे interpretation है it is not purely objective नहीं है, but it is subjective in nature. It is subjective in nature plus there is human touch या humans का जो perception है वो भी matter करता है. तो it challenges the pure positivist view by accepting that while a reality exists, it can be known imperfectly. ठीक है, जैसे वहां पे उन्होंने बोलता कि एक सिंगल रियलिटी है तो ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज नोन इम्परफेक्टली. अभी मैंने आपको दे दिया है पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, प्रेग्मेटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एम्पेरिसिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. या पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अब देखिए
अगेन ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में डिफरेंस। पॉजिटिविज्म टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिविटी और ये क्या बात करता है, सब्जेक्टिविटी की, प्रोबेबिलिस्टिक की बात करता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो रिसर्चर होता है दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द आउटकम्स, और ये क्या बोलता है कि ह्यूमन टच होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। प्राइमरी दे आर क्वांटिटेटिव, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सर्टेनिटी थ्रू एम्पेरिकल डेटा, और ये इम्परफेक्ट होता है, कॉन्स्टेंटली इट कीप्स ऑन रिवाइजिंग, क्योंकि जो हमारे ह्यूमंस के परसेप्शंस है वो चेंज होते रहते हैं और देयर इज नो सिंगल रियलिटी। नाउ द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द रियलिटी दैट सजेस्ट only knowledge gained through experience and senses, it is empiricism। जो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वो आता है हमारा empiricism। Dash issue concerns the question of what is or should be regarded as acceptable। जहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है कि क्या है कैसे है, तो वो क्या बात हो रही है, हमारी एपिस्टेमोलॉजी की बात हो रही है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन रिसर्च। अब हमारे कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं? द वेरी फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं टू असेस देयर इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारे आउटकम वेरिएबल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, दे आर द फैक्टर्स व्हिच आर केप्ट कांस्टेंट टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल्स, दैट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, ताकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वजह से ही आए और किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से या और किसी तीसरे फैक्टर की वजह से ना आए। अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्ट कॉजेज, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे, सो इट इज डायरेक्ट कॉजल रिलेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीच में एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, देन वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट से जो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, इट इज इनडायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या बताता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, मॉडरेट करता है हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, दैट इज मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब देखिए अदर नेम्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मैनिपुलेटेड, कॉजल, एक्सप्लेनेटरी, प्रेडिक्टर, फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल, रिग्रेसर, एक्सोजीनस वेरिएबल। ठीक। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? आउटकम या आउटपुट वेरिएबल, रिस्पॉन्स, मेजर्ड, प्रिडिक्टेड, क्राइटेरिया, रिग्रेसेंट, एक्सप्लेन्ड एंड एंडोजीनियस वेरिएबल। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द आउटकम दैट इज मेजर्ड। डिपेंडेंट क्या है? जो हम आउटकम मेजर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट क्या है? जो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। इंटरवीनिंग विच मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो बीच में मीडिएट करता है दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। Extraneous variable, any variable other than independent variable that causes the effect in dependent variable. Confounding systematically varies with IV and may have incorrect suggestions for cause and effect relationship. Control variable which is kept constant throughout the study. अब देखिए ये एग्जाम्पल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो मेजर हम करते हैं या फिर हम उसको उस पे आउटकम देखते हैं, देन इंटरवीनिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में जो इफेक्ट डालता है, मॉडरेटर वेरिएबल जो रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को एट डिफरेंट लेवल्स, कंट्रोल वेरिएबल विच इज केप्ट कांस्टेंट, एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एनी अनवांटेड वेरिएबल जो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल इट मिक्सेस आईवी, इट मतलब आईवी के साथ मिक्स हो जाता है और फिर हमारे जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिस्टॉर्ट करता है। एट्रीब्यूट वेरिएबल विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल जो काउंटेबल वैल्यूज ले सकता है, कॉन्टिन्यूस कोई भी वैल्यू ले सकता है। डिस्क्रीट हो गया जैसे 1 2 3 4 होल नंबर्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूस क्या हो गया? 1 1.1 1.1.1 कुछ भी डेसिमल्स में भी जा सकता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो क्वालिटी या कैटेगरी डिफाइन करता है, क्वांटिटेटिव जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफाइन करता है। अब ये मैंने आपको की कैरेक्टरिस्टिक बता दी है।
या आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो वी हैव क्वांटिटेटिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवीनिंग, मॉडरेटिंग, कंफाउंडिंग, कंट्रोल वेरिएबल, और ये मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एग्जांपल कौन सी कैटेगरी के वेरिएबल में मतलब वो करती है, फॉल करती है, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या हो गया हमारा, जो नॉमिनल वेरिएबल होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वेरिएबल्स। तो हमें बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट वेरिएबल्स के बारे में ट्रू है। Variables are measurable with varying degrees of accuracy depending upon the measurement scale used. They are the mental images, no. They are concepts, no. They are perceptions. So, हमारी वेरिंग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हम कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। मेजरमेंट स्केल हमारे 4 होते हैं, NOIR हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो वेरी करते हैं। A variable that can take up only integer values and not any fractional, मैंने अभी आपको बताया था, which is discrete variable। अब आते हैं हमारे मेजरमेंट स्केल्स। हमारे पास 4 स्केल्स होते हैं, NOIR, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। नॉमिनल क्या बात करता है, नॉमिनल लेबलिंग की बात करता है, ठीक है। यानी जैसे हमारा जेंडर, इधर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। हेयर कलर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, आई का कलर या फिर येस नो क्वेश्चंस। हम फिर आता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल इट टॉक्स अबाउट रैंकिंग, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट सीक्वेंस। सो वेरिएबल्स आर रैंक्ड और ऑर्डर्ड बट स्पेसिंग बिटवीन देम इज अननोन। जैसे रैंक कर रहे हैं हम, कंपटीशन रिजल्ट, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, या फिर कैटेगरीज लाइक लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम। ये क्या आ गए, हमने कैटेगरी, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स, सॉरी ब्लड ग्रुप इसमें आएगा, नॉमिनल में आएगा ब्लड ग्रुप, सॉरी, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप नॉमिनल में आता है। देन वी हैव इंटरवल स्केल। सो इंटरवल क्या हो गया कि वेरिएबल्स आर ऑर्डर्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल एंड मीनिंगफुल, बट इसमें कोई ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर, आप 0 डिग्री बोलते हैं तो क्या टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री होता है, नो। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि वो ठंडा है। रेशियो स्केल, देयर इज अ ट्रू जीरो। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, हाइट, वेट, अगर हम बोलते हैं इसकी हाइट 0 है, मतलब उसकी एक्चुअली में हाइट 0 है, देयर इज मतलब उसकी कोई हाइट ही नहीं है, ठीक है। वेट 0 है, मतलब वो बिल्कुल हल्का है, उसका कोई वेट ही नहीं है, तो देयर इज ट्रू जीरो। अब देखिए, नॉमिनल वेरिएबल्स दे आर कैटेगराइज्ड विदाउट ऑर्डर। सिर्फ हम कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ब्लड ग्रुप है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडोड है, डिवोर्सी है, जो भी है, ठीक। ऑर्डिनल, दे आर रैंक्ड विदाउट इक्वल इंटरवल्स। जैसे हमारे पास मूवी की रेटिंग, ठीक है, डिग्रीज ऑफ हीट, हैप्पीनेस लेवल। देन वी हैव इंटरवल वेरिएबल, इक्वल इंटरवल्स विदाउट अ ट्रू जीरो। जैसे टेस्ट स्कोर्स, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, डेट ऑफ बर्थ। रेशियो वेरिएबल, जहाँ पे हमारे ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है विद इक्वल इंटरवल्स। जैसे हमारा हाइट, वेट, टेम्परेचर इन केल्विन, डिस्टेंस। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट है इंटरवल में, और रेशियो में टेम्परेचर इन केल्विन है, आप ये ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हमारे पास एटीट्यूडनल स्केल्स। एटीट्यूडनल स्केल्स क्या हो गए हमारे, पहला आता है थर्स्टोन स्केल, यानी सीरीज ऑफ जजेस दे डिसाइड द स्केल, सो इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स। देन लिकर्ट स्केल हमारे 5 पॉइंट होता है, फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली अग्री। तो strongly disagree, then disagree, neutral, agree and strongly agree. So this is the Likert scale. Then we have Gutman scale. Unidimensional in nature होता है, यानी only one dimension or concept should be measured with that particular scale. Semantic differential, 7 point bipolar rating होता है, good और bad, और फिर 7 point पे वो उसको हमने डिवाइड किया होता है। स्टेपल स्केल क्या है कि सिंगल एडजेक्टिव होता है इन द सेंटर and even number of numerical values. So these are the attitudinal skills to measure the attitudes. Now nominal, ordinal, ratio, interval, ठीक है। nominal they denote the categories only, so A का 3। ordinal जहाँ पे हम रैंकिंग कर रहे हैं, यानी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट, सो B का 1, ठीक।
रेशियो स्केल क्या है कि हम प्रोपोर्शंस डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली, एंड इंटरवल जहाँ पे हमारा ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है, हम बता सकते हैं कि हाउ फार, मतलब जहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली हम बता सकते हैं, इक्वल इंटरवल्स हम बता सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट पर्टेन टू इंटरवल स्केल। अब हमें इंटरवल स्केल का बताना है। जेंडर हमारा नॉमिनल आता है, रिलीजन हमारा नॉमिनल आता है, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, ठीक है, ये हमारे इंटरवल स्केल में आते हैं। और ये सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लीजिए हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज बायस इन रिसर्च। बायस का मतलब क्या होता है? एनी टेंडेंसी विच प्रिवेंट्स अनप्रेजुडाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ अ क्वेश्चन, यानी एक सिस्टमैटिक एरर होता है, ठीक है, जो हमारे रिजल्ट्स को मिसलीड करता है। बायस occurs during the design, measurement, sampling, procedure or choice of the problem studied. So many factors can cause bias, in which case the results of a study are artificially increased. मतलब हम biasness से जो हमारे results हैं या तो हम उनको increase भी कर सकते हैं या फिर हम उसको decrease भी कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा experimental bias है, experimental effect. That is the tendency of a researcher to influence the participants or interpret the findings or data to arrive at the result. That is experimental bias. Halo effect क्या होता है? It is a cognitive bias, ठीक है, that occurs जब हम positive impression लेते हैं। हमसे कोई फर्स्ट टाइम मिला, उसने बहुत अच्छे से बात की है जो भी था, तो हमारा एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि इंसान अच्छा होगा, दैट इज हैलो इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट मैंने भी आपको बताया, ऑब्जर्वेशन, जब आपको दिखता है कि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपके जो एक्शंस होते हैं वो अल्टीमेटली सोशली एक्सेप्टेबल एक्शंस ज्यादा बन जाते हैं। देन प्लेसिबो इफेक्ट, व्हेन अ पर्सन्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ सीम्स टू इम्प्रूव आफ्टर टेकिंग प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है कि अ ट्रीटमेंट दैट लुक्स रियल बट होता नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल ग्रुप मीठी गोली दे देते हैं उनको ड्रग के नाम पे, सो सेम इज द प्लेसिबो इफेक्ट। इवेल्युएशन एप्रीहेंशन इफेक्ट, दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू ट्राई टू लुक बेटर और द फियर ऑफ बीइंग इवेल्युएटेड। अगला बंदा हमें जज करे उससे पहले ही हम अच्छा दिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं। Then we have is compensatory rivalry. So a threat to internal validity that occurs when participants in group increase their effort to improve because they know they are not receiving the experimental treatment. जब कंट्रोल ग्रुप को पता लग जाता है कि हमें सिर्फ मीठी गोली दी गई है, तो वो क्या करते हैं, वो जान के जो ड्रग है, ठीक है, उनको उनको पता है कि उनको मीठी गोली दी गई है, तो वो जान के ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हाँ उन पे भी उस गोली का असर हुआ है, दैट इज कंपेंसेटरी राइवलरी। रिस्पॉन्स बायस, सो refers to systematic tendency for participants to respond to survey questions or assessment in a way that does not accurately reflect their true thought, ठीक है। अब आप पूछेंगे, आप किसी के पास जाते हैं, क्या आप डाउरी लेने में बिलीव करते हैं, दहेज लेने में? अब उसको पता है दहेज लेनी गलत बात है, चाहे उसने खुद अपनी शादी में दहेज लिया होगा, बट वो आपको क्या बोलेगा, नहीं नहीं दहेज नहीं लेना चाहिए, ये गलत प्रथा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, दैट इज रिस्पॉन्स बायस। कि वो सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए जो उसके एक्चुअल थॉट्स है वो उसको नहीं प्रेजेंट कर रहा है, बट वो एक फेक थॉट प्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे बहुत सारे टाइप के रिस्पॉन्स बायसेस आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आंसर इन अ वे विच इज सोशली एक्सेप्टेबल। देन इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज रिस्पॉन्डिंग बेस्ड ऑन व्हाट द रिसर्चर वांट्स। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे डाउरी के फेवर में बोले, तो मैं आपसे क्वेश्चन ही वैसे पूछूंगी जो डाउरी के फेवर में आपको जवाब देने ही पड़ेंगे। दैट इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरी डिमांड क्या है, मैं चाहती हूँ आप डाउरी के अगेंस्ट बोले, तो मेरी क्वेश्चंस उस हिसाब से होंगे कि आप डाउरी के अगेंस्ट बोलेंगे। एक्विसेंस बायस, दैट दे एग्री विद द स्टेटमेंट रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट। आप अच्छा पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं, नॉट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, वो सब में यस 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 बोल जा रहे हैं, दैट इज एक्विसेंस बायस। डाइसेंट बायस, दैट इज दे डिसएग्री, अब वो सब में डिसएग्री 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 कर रहे हैं। एक्सट्रीम रिस्पॉन्डिंग, या तो आप खाली हाईएस्ट ऑप्शंस चूज करें या फिर खाली लोएस्ट ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। देन सेंट्रल टेंडेंसी, आप खाली बीच वाले रिस्पॉन्सेज चूज करें, जिसमें मैंने आपको बताया था लिकर्ट स्केल होता है, ठीक है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता है। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री एंड स्ट्रांगली अग्री। तो अब लोग क्या करेंगे,
अब मैंने ही जब अपना क्वेश्चन फिल करवाया था लोगों से, तो बहुत सारे लोगों ने विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे क्वेश्चन में सबको स्ट्रांगली डिसएग्री 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 कर दिया था, या फिर सबको स्ट्रांगली अग्री 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 कर दिया था, या फिर बिल्कुल न्यूट्रल 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 पूरे क्वेश्चंस को। तो ये क्या है? दिस इज बायसनेस। सेंट्रल टेंडेंसी बायस, कि आप सिर्फ मिडिल रिस्पॉन्स को, न्यूट्रल को ही टिक करे जा रहे हैं। नॉन डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रोवाइडिंग द सेम रिस्पॉन्स टू ऑल और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब अगर आपके 10 क्वेश्चंस हैं तो आप 8 क्वेश्चंस को सेम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब सोशल डिजायरेबिलिटी बायस के टाइप्स, द वेरी फर्स्ट इज सेल्फ डिसेप्टिव पॉजिटिविटी, यानी व्हेन इंडिविजुअल्स जेन्युइनली बिलीव दे पोजेस सोशली डिजायरेबल ट्रेट्स एंड अनकॉन्शियसली प्रेजेंट देमसेल्व्स। जब उन्हें लगता है कि हाँ, उनकी जो बिहेवियर है, उनके जो ट्रेट्स हैं, दे आर सोशली एक्सेप्टेबल, और वो अनकॉन्शियसली उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक a person truly thinks they never get angry and reports that they are always calm and patient even if it is not true entirely. उन्हें लगता है कि उनको गुस्सा नहीं आता है, बट इन रियलिटी उनको गुस्सा आता है। Impression management, when individuals deliberately distort their responses to appear favorable to others. जैसे a job applicant exaggerates their leadership skills, कि हाँ, मुझ में बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, मैं बहुत अच्छे तरह से लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, उनको कमांड कर सकता हूँ, उनको डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो वो क्या किया उसने? एग्जैजरेट करके बता दिया। अदर डिसेप्टिव बायस, when individuals alter their responses to impress a specific person or a group. जैसे a student overstates their study hours to appear hard working to professors. Sir, मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, पढ़ता वो दिन में चाहे 10 मिनट होगा, लेकिन टीचर के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए उसने बोल दिया मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। सो दिस इज अदर डिसेप्टिव बायस। Situational social desirability, then when people they modify their responses based on specific context. जैसे a person in medical survey may underreport their alcohol consumption because they are speaking with a doctor. ठीक है, जब वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं बट वो बोलते हैं कि नहीं सर, मैं सिर्फ बहुत कभी कभी लेता हूँ, ओकेजनली, जबकि वो रोज पीते होंगे। Biosocial, when a researcher's gender influence participants' behavior in a study. This effect describes how biological and social factors impact individual responses or behavior in a research settings. ठीक है, अगर आपके पास कोई अपना क्वेश्चन भरवाने आ रहा है, अगर तो वो मेल है और आप भी अगर मेल हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। बट अगर आप फीमेल हैं और जो रिस्पोंडेंट है वो मेल है, ठीक है, और आप गए हैं उसके पास क्वेश्चन भरवाने, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपको उससे अप्रोच करना, बात करना अलग होगा। और वही अगर रिस्पोंडेंट भी फीमेल होगी तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। सो दिस इज बायो सोशल इम्पैक्ट, कि एक रिसर्चर का जो जेंडर है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। अब देखिए, आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। सोशल डिजायरेबिलिटी अभी मैंने आपको बताया था, इंप्रेशन मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसेप्शन पॉजिटिविटी। So option number 4, the tendency of researchers to subtly and inadvertently affect the behavior of participant in a study, obscuring the true effect of independent variable, that is experimenter bias or research bias. Now, when a person responds the same way टू जस्ट अबाउट एवरी आइटम, ठीक है, मैंने भी आपको बताया था, दैट इज नॉन डिफरेंशिएशन। ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स उसकी एक ही तरीके से, मतलब वो या तो सारी न्यूट्रल कर रहा है, सारी एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, दैट इज नॉन डिफरेंशिएशन। व्हेन द एज, जेंडर और रेस ऑफ अ रिसर्चर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिसिपेंट, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज बायोसोशल इम्पैक्ट। अब आता है हमारा पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। अब सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, देन वी सिलेक्ट अ सैम्पलिंग फ्रेम, फिर एक टेक्निक चूज करते हैं, सैम्पल साइज डिटरमाइन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन रिस्पॉन्स रेट को हम असेस करते हैं। अब सैम्पलिंग इट कैन बी विद रिप्लेसमेंट, यानी जहाँ पे हम सेम यूनिट को मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि वो आ सकता है। एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कि जब एक यूनिट हमारा सिलेक्ट हो गया हम उसको बाहर रख देते हैं, और जो हमारे बाकी के सैंपल बचे होते हैं उसी में से हम अपना सैम्पलिंग चूज करते हैं, दैट इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब दो तरीके की होती है हमारी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब वी हैव इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है?
अनइक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, जहाँ पे बायसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम क्या बोल सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। जो अपॉर्चुनिटी होती है वो फिक्स्ड होती है और नोन होती है। अनबायस्ड रिजल्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैटिस्टिकल होता है। जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो हम टेस्ट कर, मतलब जो हाइपोथेसिस है वो हम टेस्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है। जो सिलेक्शन बायस है वो आर्बिट्रेरी होता है। अपॉर्चुनिटी इज नॉट स्पेसिफाइड, एक्सप्लोरेटरी होती है। बायस्ड जो रिजल्ट है वो बायस्ड आता है। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, एनालिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। और जो हमारी हाइपोथेसिस है हम उसको जेनरेट करते हैं। अब देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग, कि हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर रैंडमली हम उस पूरे क्लस्टर को उठा रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, हम पहले उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम हर एक ग्रुप में से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सबसे पहला आता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि ईच मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, जैसे हमारे वो हम फिश बाउल में वो लॉटरी की टिकट्स करते हैं। देन क्लस्टर सैम्पलिंग, population is divided into clusters and a random sample of clusters is selected. Stratified में क्या होता है, तो population is divided into strata and random sample is taken from each strata. cluster में हमने पूरा cluster उठा लिया, लेकिन strata में अब जो हमने groups में divide किया हम उसमें से बच्चों को pick कर रहे हैं. Systematic sampling, every nth member of the population is selected. Types of non probability, सबसे पहला आता है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी द सैंपल इज चूजन बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सेस। मुझे अगर शॉपिंग से रिलेटेड कोई हमारे पास मुझे कोई रिसर्च करनी है विच इज रिलेटेड टू फीमेल शॉपिंग, तो मैं सीधे शॉपिंग मॉल में चली जाऊँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। देन जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है कि हम रिसर्चर की जजमेंट और एक्सपर्टीज के बेस पे हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, चेन सैम्पलिंग बोलते हैं या फिर रेफरल सैम्पलिंग ही बोलते हैं। जो हमारे हार्ड टू रीच ग्रुप्स होते हैं, जब हमें उनको केटर करना है, हमें उनसे डेटा लेना है, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रोपोर्शन टू द प्रेवलेंस इन द पॉपुलेशन। जैसे हमारे पास भी कोटा होता है, ठीक है, कि अगर हमें यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो हमारे मास्टर्स में 55% होने ही होने चाहिए, दिस इज द कोटा। तो एक कोटा एक हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ही हम, क्योंकि देखो ना जिन बच्चों के 55% से कम मार्क्स हैं वो तो ऑलरेडी इस चीज से बाहर है ना, वो तो नेट का एग्जाम दे ही नहीं सकते, वो तो बैठ ही नहीं सकते, अपीयर ही नहीं कर सकते हैं, तो वो पहले ही बाहर हो गए हैं, ठीक है। सो दिस इज कोटा सैम्पलिंग। अब ये देखिए सिंपल रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड एंड सिस्टमैटिक, और नॉन प्रोबेबिलिटी आ गया हमारे जजमेंटल, कन्वीनियंस, कोटा एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड्स, फोकल सैम्पलिंग जहां पे हम एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड में ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। डायमेंशनल सैम्पलिंग दैट इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। फोकल में हम सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, डायमेंशनल में हम मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट सैम्पलिंग, इट ऑफर्स अ स्नैपशॉट की इन्फॉर्मेंट दैट गैदर्स इनसाइट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। इवेंट सैम्पलिंग क्या हो गया, स्पेसिफिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। टाइम सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एज पर द टाइम आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड 1-0 सैम्पलिंग, इट रिकॉर्ड्स द अकरेंस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग स्पेसिफिक इंटरवल्स। Now, given below are two statements. The assertion says probability sampling is appropriate for quantitative research. ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमारी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होती है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारा रिजल्ट आता है वो अनबायस्ड होता है। सो both are correct and it is the correct explanation of A. So probability sampling is appropriate for quantitative research because it helps in reducing the biasness in the selection of samples. Now snowball, purposive, quota and convenience. अब देखिए snowball की बात करते हैं। Identify other respondents with the help of initial ones, hard to reach groups, A का 4th। Purposive, पर्पस हमारा क्या पर्पस है, हम नियरेस्ट इंडिविजुअल्स को चूज कर रहे हैं, बी का 3।
कोटा इक्विवेलेंट टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कोटास में हमने कर दिया, एंड कन्वीनियंस हैंड पिक्ड बेस्ड ऑन द यूजेबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। सो डेटा क्या होता है? इट इज द इन्फॉर्म्ड रिकॉर्डेड informed information, it is the information which is recorded to represent the facts. अब क्या है? It is about hypothesized variables, then data is analyzed to determine the consistency with prediction. अगर तो हमारा जो डेटा है और जो प्रिडिक्शन है वो कंसिस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो सपोर्टिव है, else it is rejected. The quality and validity of the outputs are solely dependent on the tools. The data can be classified as primary, secondary, objective, subjective, qualitative and quantitative. अब प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है हमारा फर्स्ट हैंड डेटा, जो रिसर्चर खुद फील्ड पर जाके कलेक्ट करता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, दे हैव मोर कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ डेटा एंड इट इज स्पेसिफिक टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हम सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? जो ऑलरेडी कलेक्ट हुआ है, ठीक, और हम सिर्फ उस कलेक्टेड डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय समवन एल्स, जैसे हमारे पास जर्नल्स होते हैं, हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, तो उनमें जो हमारा डेटा पब्लिश होता है उसके बेसिस पे जो अपना एनालिसिस है या जो हमारी इंटरप्रिटेशन है हम वो करते हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो जिसमें कोई बायसनेस नहीं है। और सब्जेक्टिविटी क्या होती है? जो डिपेंड करता है रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन पे, वो कैसे उस डेटा को मीनिंग दे रहा है, तो जहाँ पे ह्यूमन टच इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ पे हम वर्ड्स और इमेजेस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे क्वालिटेटिव आते हैं। क्वांटिटेटिव, जहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी हम सर्वेस की बात कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये ओपन एंडेड होते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड और क्लोज एंडेड होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनसाइट्स में थीम्स की बात करते हैं, यानी हम सब्जेक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, यानी हम ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में आता है हमारा सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आता है हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है? हमारा मैथमेटिकल एवरेज। मीडियन क्या होता है? जो मिडिल वैल्यू। और मोड क्या होता है? तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यूड। देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, हमारा रेंज, वेरिएंस एंड डेटा स्टैंडर्ड वेरिएशन। सो रेंज, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। वेरिएंस, कि हर एक नंबर एक दूसरे से, मीन से कितना दूर है और एक दूसरे से भी कितना दूर है। स्टैंडर्ड डेविएशन, द एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डेटा सेट। डेटा विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं ग्राफ्स, चार्ट्स या टेबल्स के थ्रू। नाउ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? जो हमें बताता है सेंटर या फिर टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। वेरिएशन क्या बताता है? द डिस्पर्शन और डेविएशन अमंग द डेटा वैल्यूज। मतलब अगर ये हमारा मीन है तो जो हमारा डेटा है वो कितना कम ज्यादा है हमारे मीन से, कितना ज्यादा डिस्पर्स है, कितना कम डिस्पर्स है, वो हमें क्या बताता है? वेरिएशन बताता है। अब एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द डेविएशन टेकिंग फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, और ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए थोड़ा बोल्ड में लिख दिया था। सो यानी कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मीन को हर एक डेटा एंट्री पॉइंट से और फिर आप उसको बाद में ऐड करेंगे, तो क्योंकि स्टार्टिंग की जो वैल्यूज आती है वो नेगेटिव आती है, फिर एक जीरो आता है और बाद में पॉजिटिव आता है, तो ये सारी वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और जो हमारा मीन होता है इट इज ऑलवेज जीरो। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर स्प्रेड और पॉसिबल आउटकम्स। अब जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं हमारी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, दो क्लासेस में डिवाइड होती हैं। डिस्क्रीट में आता है हमारा बर्नौलीज, बाइनोमियल, पॉइसन एंड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस में आते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज डिस्क्राइब्ड बाय मीन एंड standard deviation. This is the mean, mu and sigma, which is the standard deviation. It is all often referred to as bell shape. ठीक है, हमारा नॉर्मल ऐसे होता है,
ठीक है, NDC यानी ये हमारा मीन होता है, तो 50% यहाँ पे होता है, 50% यहाँ पे होता है। Most of the values are around the center. The median and mean are equal. It has only one mode. It is asymmetric, यानी यहाँ पे हमारा mean is equal to median is equal to mode. Symmetric होता है नेचर पे, यानी it decreases with same amount on left and right of the center. The area under the curve, it represent the probabilities. The area under whole curve is equal to 1 or 100%. ये पूरा मैंने आपको बोला ये 50%, ये 50%, यानी this whole is 100%. अब ये देखिए, अब ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। म्यू -1 सिग्मा से म्यू +1 सिग्मा तक, ठीक है, जो हमारा डेटा होता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रफली 68.3। म्यू -2 सिग्मा, म्यू +2 सिग्मा 95.5%, दैट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू -3 सिग्मा, म्यू +3 सिग्मा is 99.7% data, which is 3 standard deviations. ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस क्या बताता है हमें? असिमेट्री of the probability distribution. It indicates whether data values are stretched more towards the left or right side. ठीक है, ये हमें डायरेक्शन बताता है एक्सट्रीम वैल्यूज की। It influences the difference between mean, median and mode, and it is used in identifying required transformation. अब देखिए, अगर तो हमारा जो टेल है, ठीक है, टेल इज मोर टूवर्ड्स राइट साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्क्यूनेस। ये क्या आ गया हमारा? जीरो स्क्यूनेस। एंड व्हेन इट इज टूवर्ड्स, सॉरी दिस इज टूवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी दिस इज टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्क्यू। ठीक है, दिस इज टूवर्ड्स राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूनेस की राइट टेल इज लॉन्गर और मोर स्ट्रेच देन लेफ्ट। अब देखिए, राइट टेल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट वन। सो मेजॉरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स आर कंसेंट्रेटेड ऑन द लोअर वैल्यू साइड। तो यहाँ पे हमारा मीन, देन वी हैव मीडियन एंड देन वी हैव मोड। नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या है कि जो लेफ्ट टेल है इज लॉन्गर देन द राइट वन। और जीरो स्क्यूनेस का मतलब क्या है? कि परफेक्ट सिमेट्री है। कर्टोसिस का मतलब क्या होता है? शार्पनेस और पीक्डनेस। It shows how heavy or light its tails are compared to normal distribution. Higher kurtosis means extreme outliers. Lower kurtosis implies fewer extreme values, and excess kurtosis is commonly used for interpretation. अब ये देखिए, हमारे पास ऐसे बनता है, this is platykurtic, ठीक है, this is platykurtic, then we have meso and then we have leptokurtic, ठीक है। अब देखिए, mesokurtic जहां पे जो वैल्यू है इट इज अराउंड 3। लेप्टोकर्टिक में क्या होता है, ऐसे बताती हूँ मैं आपको। ये आता है हमारा मेसोकर्टिक, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है कर्टोसिस की, इट इज इक्विवेलेंट टू 3। लेप्टोकर्टिक में क्या होता है, जो वैल्यू होती है इट इज ग्रेटर देन 3। और जो प्लेटिकर्टिक होता है उसमें जो वैल्यू होती है इट इज लेस देन 3। ये हमारी कर्टोसिस की 3 क्लासिफिकेशंस है। अब ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस का डिफरेंस है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो स्क्यूनेस हमें क्या बताता है? असिमेट्री बताता है। और जो कर्टोसिस है वो हमें क्या बताता है? पीक्डनेस बताता है। फिर आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नल या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, सिग्निफिकेंस लेवल चूज करते हैं, कलेक्ट एनालाइज करते डेटा, कैलकुलेट करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक को। तो स्टैटिस्टिकल डिसीजन के बेसिस पे या तो हम रिजेक्ट करते हैं या फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? थ्रेशहोल्ड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हमारे पास कितना परसेंटेज है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके, वो क्या होता है? हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू, विच इज नॉर्मली हम जो सिग्निफिकेंस वैल्यू लेते हैं वो 5% लेते हैं, यानी 0.05 हमारे पास अल्फा होता है कि हमारे पास 5% चांस है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। और ये हमारा सोशल साइंसेस में होता है 5%।
अगर हम मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू होता है वो एक्चुअली में 1% होता है, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस वैल्यू हम रिजेक्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट को, एंड हम फेल टू रिजेक्ट यानी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू को। सो रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, तो उसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं हमारे, सिर्फ 5% होते हैं। अब देखिए, व्हाट डज नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। नल हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि हम जो दो ग्रुप्स को मेजर कर रहे हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ अरेंज द p वैल्यूज फ्रॉम लोअर टू हायर अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंस, ठीक है। लोएस्ट से हाईएस्ट 0.5, 0.05 यानी ये 5% है। 0.5 क्या हो, कितना हो गया, 50% ना। हाँ, दिस इज 50%, दिस इज 5%। तो अब आप इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस हिसाब से आप फिर उसको लोएस्ट टू हाईएस्ट जब लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो जैसे 0.01 इज 1%, तो ये सबसे लोएस्ट है 50%, कि हमारे पास 50% चांस है कि हम मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, तो ये सबसे कम चांसेस होते हैं ऐसे। फिर आता है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है हमारा, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, इट इज मैच्ड विद द मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल which causes scores to fluctuate inconsistently across repeated trials। देखिए, रिलायबिलिटी इज मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी। सो अगर ट्रूथ विद इन द स्टडी आप देख रहे हैं, इट इज इंटरनल वैलिडिटी, और जब आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं पॉपुलेशन पे यानी रियल लाइफ सिचुएशन पे, इट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की, हमारे पास आता है पहला फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब कि जो अपीयर हो रहा है उसके चेहरे से, ठीक है, टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर इज फेस वैलिडिटी। देन वी हैव कंटेंट वैलिडिटी, that whether a test or a scale is measuring all the components of a given construct or not. Internal validity, मैंने अभी आपको बताया कि whether or not the results of an experiment are due to manipulation of independent variable or not. Criterion validity, sometimes called predictive validity, it refers to how well scores on one measurement are associated with the given performance result. Construct validity, ठीक है, it is the extent to which measurement tool is truly assessing what it has been designed to assess. अब construct validity हमारे आगे दो टाइप्स की होती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है कि हम दो टेस्ट जो हम सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमने दो टेस्ट सेम ग्रुप को दे दिया है। डाइवर्जेंट वैलिडिटी क्या है, the two tests that measure completely different constructs are administered to same sample of participants. Then we have external validity. External validity मैंने भी आपको बताया जब आप सैंपल से पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर रहे हैं। Concurrent validity, method of assessing validity that involves comparing a new test with already existing test। अब concurrently देख रहे हैं जो आपने न्यूली डिजाइन किया और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके बीच में कितनी वैलिडिटी है या नहीं, आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की अगर बात करते हैं, सो वी हैव टेस्ट रीटेस्ट, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू सेम सब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स। आपने आज दिया, फिर आपने 5 दिन बाद दिया, फिर आपने दोबारा 5 दिन बाद दिया, मतलब टोटल 10 दिन बाद दिया, ठीक है। तो आप सेम सैंपल को एक ही टेस्ट अलग अलग इंटरवल्स पे दे रहे हैं, दैट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इंटर रेटर क्या होता है कि व्हेन डिफरेंट ऑब्जर्वर और रेटर दे इवेलुएट द सेम फिनोमेना, ठीक है, मैं हूं और मेरे साथ एक और कोई टीचर है, तो हम सेम फिनोमेना को कैसे रेट कर रहे हैं, चीज एक ही है लेकिन रेटर्स अलग अलग है, दैट इज इंटर रेटर रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, that examines the equivalence of two different forms of test designed to measure the same construct. And internal consistency, it evaluates the extent to which items within a test measure the
same construct, that is internal consistency. Split half, it involves dividing a test into two halves. ठीक है, आपने दो halves में divide कर दिया और फिर आप दोनों की consistency between the two halves आप check कर रहे हैं. So reliability focus on consistency and repeatability. Validity ensures that the tool measures what it intends to measure. Relationship क्या है? A test can be reliable without being valid, but validity always requires reliability. ये line जो है बहुत 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 important है. अब देखिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म्स. मैंने अभी आपको बताया था रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, यानी जो चीजें बदल रही हैं उनको नहीं बदलना है, यानी वेरिएबिलिटी, वेरिएबल एरर का मिनिमाइज होना ही होना चाहिए, दैट इज रिलायबिलिटी. ठीक है, तो जब वेरिएबिलिटी कम होगी तो हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, जब चीजें कम वेरी करेंगी तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी. सो ए का 3 हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. देन वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या है? इंटरप्रेटिव एरर. ऑब्जेक्टिविटी हमारा पर्सनल एरर होता है और जो नॉर्म्स होते हैं दे आर कांस्टेंट एरर्स. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. अगर आपने कहीं नहीं लिखा है तो आप ये प्लीज एक छोटा सा नोट बना के रख लीजिए. देन वी हैव रिसर्च एथिक्स. हमारे 3 टर्म्स आती है रिसर्च एथिक्स में, फेब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म. फेब्रिकेशन का मतलब क्या है? हम एक्चुअल डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे और खुद ही हम अपने जो भी हमारा डेटा है हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद से ही हम नंबर्स अपने डाल रहे हैं डेटा में, दैट इज फेब्रिकेशन. देन वी हैव फॉल्सिफिकेशन. फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? मैनिपुलेटिंग और ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग रियल डेटा. जो रियल डेटा एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो. फेब्रिकेशन में तो एक्चुअल डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं. प्लेजरिज्म क्या है? दैट यू यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग द क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर. Now, in research context, filling up data collection forms by a single person without actually collecting the data, it is known as fabrication. मैंने अभी आपको बताया था. Then, in research context, the act of plagiarism can be avoided by giving proper citation, yes. Crediting only the main author, no. Paraphrasing correctly and citation दे रहे हैं बिल्कुल. Replacing the name of original author, no. Using a plagiarism checker tool. So ACE option 4 हमारा correct statement हो जाएगा. Now certain miscellaneous topics. Now arrange the following in terms of increasing order of the minimum number of variables required. ये देखिए मीन में हमें एक वेरिएबल, मिनिमम वेरिएबल कितना चाहिए होता है? मीन में एक वेरिएबल चाहिए होता है. ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट में 2 वेरिएबल्स चाहिए. फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन में 3 वेरिएबल्स, सेकेंड ऑर्डर में 4, थर्ड ऑर्डर में 5 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं. तो इसके बेसिस पे हमारा मीन, हमें एक वेरिएबल चाहिए तो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर. अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो ए से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा हमारा मीन आता है, फिर क्या आता है हमारा? कोरिलेशन कोफिशिएंट, फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर, फिर आता है सेकेंड ऑर्डर. सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो मीन सबसे कम होता है, फिर हमारा फर्स्ट ऑर्डर था और हमारा सेकेंड ऑर्डर था. तो ये मिनिमम वेरिएबल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग दीज स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, ये उसके ऊपर था. ये कुछ हमारी रिसर्च एब्रीविएशंस होती हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे एबिडम हो गया, CF हो गया, ठीक है, एट आल हो गया, FN हो गया, फुटनोट, देन IBID हो गया, LOCCIT हो गया, OPCIT हो गया, ND हो गया. ठीक है, कि कोई डेट नहीं है पब्लिकेशन की, NP नो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन. तो ये सब चीजें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. फिर आते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. क्लोज एंडेड, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, यस और नो, खत्म बात. ओपन एंडेड, हाउ डू यू फील अबाउट योर एक्सपीरियंस व्हाइल यूजिंग आवर प्रोडक्ट. तो अब आप अपने वर्ड्स पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि इस वजह से, या मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इस वजह से. यहाँ पे सीधा यस नो था. सो दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अब देखिए, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन. इट इज ओपन एंडेड के बताने, इट इज इजी टू प्रोसेस आंसर्स, रिस्पोंडेंट्स कैन. ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप
अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं तो क्या इजी होगा? नो, इट वोंट बी इजी। आपको हर एक इंसान ने क्या लिखा है, हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा। Respondents can answer in their own terms, yes. They enhance comparability, no. They are useful to explore new areas or the ones in which researcher has limited knowledge. Correct statement. ठीक है, अब देखिए फिर से वही है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। आंसर कोई और आ गया है, क्वेश्चन कोई और है, ठीक है, ये क्रॉस कर दीजिएगा। फिर आता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का डायग्राम विच शोज द क्वार्टाइल्स इन अ बॉक्स। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारे अपर 25% ऑफ द डेटा है, ये हमारा लोअर 25% ऑफ द डेटा है, और ये बीच का हमारा 50% है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है हमारी? दिस इज द मीडियन। तो यानी एक हमने क्या किया है, अब देखिए, दिस इज 25, दिस इज 25, ये पूरा 50 है, अब ये मीडियन है, तो यानी ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, सब 25% है। सो दिस इज द बॉक्स प्लॉट। ये देखिए, ये मिनिमम दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? लोअर क्वार्टाइल, ये आ गया मीडियन Q2, और ये आ गया हमारा अपर क्वार्टाइल, और ये मैक्सिमम 25%। सो द स्मॉलेस्ट नॉन आउटलायर वैल्यू shown at the lower whisker end is minimum. First quartile, the value below 25% data lies. Median क्या हो गया? The value that splits the data into two equal halves. Third quartile, the value below which 75%, मतलब इसके पीछे ये 75% डेटा है, Q3 के बाद नीचे 75% of the data है, and maximum is the largest non-outlier value which is shown at the upper whisker end. So a box plot is useful for displaying information on outliers. Yes, correlation नहीं, median है, auto covariance ऐसा कुछ नहीं है. So outliers and median. So A and C, option number 3 correct answer हो जाएगा. फिर आता है हमारा मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म के कुछ की फीचर्स हैं, दे बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रूथ, साइंस, रैशनैलिटी, जो हमारे पॉजिटिविज्म के फीचर्स थे, ठीक है, प्रोग्रेस, इनोवेशन, स्ट्रक्चर्ड इन हायरार्की, पॉजिटिविज्म इन रिसर्च। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या बोलते हैं कि जो रियलिटी है इट इज रिलेटिव इन नेचर, ठीक है, स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स साइंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। स्केप्टिसिज्म मतलब देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डाउट। multiplicity of perspectives, decentralization and fluidity, and interpretivism in research, कि आप interpret कर सकते हैं, there are different different narrations of human experiences, of human interpretations, that is postmodernism. So मॉडर्निज्म हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिव होता है, इट इज बेस्ड ऑन रीजन एंड इट इज शेप्ड बाय द कल्चर एंड लैंग्वेज। रियलिटी फिक्स्ड होती है, हम रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिविस्ट होता है, एम्पेरिकल होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, क्वालिटेटिव होता है, क्रिटिकल होता है। इट ट्रस्ट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोग्रेस, दे आर स्केप्टिकल एंड क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। ग्रैंड नरेटिव्स, ठीक है, एंड इट रिजेक्ट ग्रैंड नरेटिव्स एंड इट एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म? सो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या था हमारा कि वो रिजेक्ट करता है ग्रैंड नरेटिव्स को, और यहाँ पे लिखा था एक्सेप्ट करता है ऑल द ग्रैंड नरेटिव्स। सो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर नंबर 2 गलत हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा H इंडेक्स, a scholarly metric that measures both productivity and the citation impact, and it was given by J.E. Hirsch in 2005. So it is defined as highest number such that the researcher has published H papers that have been cited at least H times. अब देखिए, सबसे पहले H index, it is used to gauge a researcher's productivity. तो क्या डिफाइन करता है? द मैक्सिमम नंबर H that an author has H papers cited at least H times, at least, कम से कम, at least H times. अब देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। H इंडेक्स
हमें दिया है डॉक्टर अमर का, उन्होंने 5 पेपर पब्लिश किए हैं और उनके ये साइटेशन काउंट्स हैं। तो अब एच इंडेक्स क्या होगा? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपको अरेंज करना है साइटेशंस को इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी साइटेशंस हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगी बड़े से छोटे। ठीक है, 5 पेपर्स थे तो एक जगह पे हमने ऐसे बॉक्स बनाया, एक जगह हमने लिखा पेपर्स और एक जगह हमने लिख ली साइटेशन। 5 पेपर्स थे 1 2 3 4 5 और साइटेशंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया 21 12 4 2 एंड 1। अब क्या करना है, हमें देखना है, कंडीशन है कि जो साइटेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ पेपर्स। 21 ग्रेटर देन 1 है 12 ग्रेटर देन 2 है, क्या 4 ग्रेटर देन 3 है? नहीं है, यानी यहाँ पे जो एच इंडेक्स है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था एटलीस्ट, कम से कम जितने उसके पेपर्स हैं उतनी उसकी साइटेशन तो होनी ही होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो जहां पे ये जो कंडीशन है कि साइटेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक वो वायलेट होगी तो उतना उसका एच इंडेक्स हो जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, हमें डॉक्टर अमित ने 10 पेपर पब्लिश किए और ये साइटेशंस दी हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले पेपर्स को अरेंज किया और साइटेशंस को भी अरेंज कर दिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 12 इज ग्रेटर देन 1, 11 ग्रेटर देन 2, 9 ग्रेटर देन 3, 8 ग्रेटर देन 4, 7 ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, क्या 4 7 से बड़ा है? नहीं है, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पे एटलीस्ट मतलब कम से कम इट इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू। तो यहाँ पे भी ठीक है, हमारा जो एच इंडेक्स था वो 3 हो गया था। नहीं सॉरी, फाइव, आंसर मैंने गलत दिया है शायद। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2 हो जाएगा विच इज 6, यानी उसका एच इंडेक्स कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, सो मैंने आपको रिसर्च के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, चाहे वो टाइप्स ऑफ रिसर्च थे, रिसर्च क्या होता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, उनके टाइप्स क्या होते हैं, देन पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, एच इंडेक्स हो गया, फिर मिनिमम वेरिएबल्स कौन से स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में कितने रिक्वायर्ड होते हैं, हमारा बॉक्स प्लॉट क्या होता है, तो जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इन वन वीडियो और मैंने आपको प्रेजेंट किया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, मैंने बहुत क्रिस्प रखा था, इन शॉर्ट रखा था, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी एकेडमी, अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज वो भी कमेंट करके या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल सकते हैं, सो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।